Okay, so we are starting with the next important chapter from organic chemistry, and it is the lengthiest chapter of organic in terms of the number of reactions related to the preparation methods, the chemical properties. So there are basically two categories of the reactions which we are going to discuss. फर्स्ट कैटेगरी में अल्डिहाइड कीटोन्स को डिस्कस करेंगे एंड द सेकंड कैटेगरी इज ऑल अबाउट द कार्बोक्सिलिक एसिड्स. उसमें थोड़ा ईस्टर का एडिशनल पार्ट भी हम डिस्कस करेंगे which is not there in the CRT syllabus, but there are some reactions which we need to remember for esters as well. Okay. So first of all, this chapter we can call it as carbonyl compounds because aldehydes, ketones, acids, and esters all have a common group that is C double bond O. That is why we can call it as carbonyl compounds. और इसके बारे में अकाई का शॉर्ट न्यूमोनिक ऑलरेडी दे भी चुका हूँ. ठीक है, दे ऑल बिलोंग टू द माइनस आर इफेक्ट व्हेन वी टॉक अबाउट द रेजोनेंस इफेक्ट्स एंड दे आर अकाई कंपाउंड्स. Now, aldehydes have a carbonyl group which is bonded with a H. So the functional group of aldehyde is CH double bond O. Ketones have the carbonyl group itself as the functional group. Carboxylic acids के लिए the carbonyl is further bonded to OH. And अगर मैं esters की बात करूँ तो carbonyl is bonded to the alkoxy OR dash group. Now, इस chapter में we are going to first discuss about aldehydes, ketones, and then acids and esters को हम separately study करने वाले हैं. Now, the question arises that all of these compounds, akai, have a common carbonyl group. Still, why the properties are different for them? And reason already हम discuss कर चुके हैं. Why the properties of aldehyde ketones is different from acid esters? Yes, anyone? Degree of unsaturation. डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन. डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन सब में वन ही है डी एक ही तो पाई बॉन्ड है. Because of the additional oxygen. बिकॉज ऑफ द एडिशनल ऑक्सीजन व्हाट हैपेंस? Resonance. करेक्ट. जो कार्बोक्सिलेट आयन है ऑफ द कार्बोक्सिलिक एसिड या ईस्टर का जो अल्कोक्सी ग्रुप है उसका ऑक्सीजन का लोन पेयर कम्स इन कॉन्जुगेशन विद द पाई बॉन्ड and because of that the acid and esters as a whole molecule are stable as compared to aldehyde ketones. इसलिए जो chemical reactions aldehyde ketones undergo करते हैं the similar reactions we don't observe for acid and ester. This is the first introductory thing which you need to remember कि aldehyde ketones and acid ester हम separately दो categories में क्यों पढ़ रहे हैं. ठीक है. सिमिलर वे में प्रीवियस चैप्टर में अल्कोहल्स और ईथर्स को हमने सेपरेटली पढ़ा था because if I comment about the reactivity of alcohol versus ethers, what is the conclusion? Alcohols are more reactive. Sorry, Alcohols are more reactive. alcohols are more reactive and we had analyzed that ethers are comparatively inert or less reactive. ठीक है, because of two alkyl groups bonded to the oxygen atom there is no deficient center where the reactivity could be higher. इसलिए ethers in general are less reactive or almost inert and that is the reason they were used as solvents. इसलिए alcohols के सारे reactions और ether के reactions हमने अलग पढ़े थे. तो ये conceptual चीज भी आप ध्यान रखो before we start with the chapter. So in the introduction, now we start with the first part, as I said, that we will first discuss about the first two carbonyl compounds, aldehydes and ketones. तो दोनों में कॉमन कार्बोनाइल ग्रुप तो है बट डिफरेंशिएट में अगर मैं बात करूं तो aldehydes contain a carbonyl which is always bonded to one H and ketones not the GR, it's a functional group, sorry. Aldehydes contain the functional group as carbonyl bonded to H, and ketone contain the functional group as carbonyl itself, which is bonded to the carbon atoms. Now, as a substituent, what is the aldehyde group called?
Formyl group. मतलब as per the order of priority, if aldehyde becomes a substituent, you will name it as formyl, and for ketone, you name it as oxo, oxo. कीटोन के लिए ऑक्सो. अब जनरल स्ट्रक्चर की बात करते हैं. तो this CHO group could be attached to an alkyl group, and because the functional group is containing carbon, this R can be equal to H, and that leads to the first and the simplest aldehyde called R equal to H में formaldehyde. उसके बाद आगे के जो aldehydes है, they are named with respect to some prefixes, and the list of prefixes I've already given. जैसे H के लिए form corresponds to formaldehyde. What is the next prefix? Acid. acid, Acid. Then propion. Propion. Then Butyr. 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 Then valor. और अगर फिनाइल ग्रुप होगा ना तो वी यूज बेंजो. फिनाइल के लिए बेंजो. यानी H के लिए फॉर्म, CH3 के लिए एसिड, इथाइल के लिए प्रोपियन, प्रोपाइल के लिए, प्रोपाइल एज एन अल्काइल के लिए ब्यूटर, ब्यूटाइल के लिए वैलर, एंड फिनाइल यानी C6H5 के लिए बेंजो. ठीक है. नाउ व्हेन H इज इक्वल टू फॉर्म, yeah, when R is equal to H, the corresponding prefix is form. What is the total carbon when we attach it to the CHO group? Total carbon कितना होगा? H with a CHO, how many total carbons? 1, 1. वैसे एसिड में अल्काइल मीथाइल है लेकिन CHO से बॉन्ड करने पर टोटल कार्बन 2 होगा. वैसे प्रोपियन इज टोटल 3, ब्यूटर इज 4, वैलर इज 5, एंड बेंजो तो अपना C6H5 के साथ लगाओगे तो 7 कार्बन हो जाएगा, बट वो अरोमेटिक है. ठीक है. तो मेन ये प्रीफिक्सेस को यू कैन जस्ट रिमेंबर ऑन द फिंगर टिप्स. द 5 प्रीफिक्सेस ऑन द फिंगर टिप्स मीनिंग फॉर्म, एसिड, प्रोपियन, ब्यूटर, वैलर. फॉर्म, एसिड, प्रोपियन, ब्यूटर, वैलर. दैट ऑल्सो गिव्स यू द नंबर ऑफ कार्बन. जैसे एक कार्बन होगा टोटल में तो वो फॉर्म के रिलेटेड होगा. 2 कार्बन टोटल इज एसिड, 3 is propion, 4 is butyr, and 5 is valor. Is that very clear? yes sir, Yes, sir. ठीक है. तो R equal to H हो सकता है या फिर it can be any of the alkyl, or in case of aromatic this CHO group will be attached to the aryl group which is phenyl, and the simplest of that is called benzaldehyde. What is the molecular formula of aldehyde? Molecular formula CnH2n plus 1 CH. CnH2n plus 2 O is not the molecular formula. CnH2NO. CnH2NO. इनफैक्ट ये जो मैंने लिखा है अल्केन O बोला है मैंने, अल्केन O. दिस इज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ Alcohol. अल्कोहल Ester. एंड ईथर. Ethers. अल्कोहल एंड ईथर which are the functional isomers. अब जब अनसैचुरेशन आ जाएगा तो हाइड्रोजन कम हो जाएंगे एंड वी विल हैव CnH2nO. एंड इसको याद रखा था हमने अल्कीनो. In fact, alkene O as a molecular formula not only represents aldehydes, ketones, but also represents Unsaturated alcohols. unsaturated alcohol or Cyclic alcohol. cyclic alcohol, or Same with ethers. same with ethers, unsaturated ether, unsaturated ether or cyclic ether. मतलब alkene O as a molecular formula represents 6 compounds: aldehydes, ketones, enol यानी unsaturated alcohol, unsaturated ether, and unsaturated है मतलब DU यानी degree of unsaturation 1 है, so it can also represent a cyclic alcohol and a cyclic ether. समझा? Yes sir. So now coming to ketones. Ketones के लिए the functional group is carbonyl or oxo group which is attached to alkyl groups.
Now, when it is attached to alkyl groups, it can be same or different. जब ये दोनों alkyl same होगा, we will call the ketone to be symmetrical या simple ketone, and the classification is exactly similar to किसके जैसा है? ईथर के जैसा, राइट? ईथर में रॉर होता है, यहाँ पे आर सी ओ आर डैश है. दो अल्काइल सेम होगा तो सिंपल या सिमेट्रिकल ईथर बोलेंगे, एंड इफ दे आर डिफरेंट इट विल बी कॉल्ड मिक्स्ड और अनसिमेट्रिकल कीटोन. ठीक है, यहाँ पे R को H नहीं लगा सकते बिकॉज जब H लगाओगे वो बेसिकली अल्डिहाइड्स ही हो जाएगा. मतलब कीटोन्स के लिए देयर शुड बी अ चेन ऑफ कार्बन ऑन आइदर साइड्स ऑफ द कार्बोनाइल ग्रुप, और we can have one aryl group that is phenyl and other as alkyl, या फिर मेरे पास दोनों तरफ aryl group हो सकता है. So this can be the variety of ketones which could be possible. Then with the molecular formula, it is again having alkene O as the formula, and aldehydes and ketones एक दूसरे के functional isomers हैं. Shams, Kanesh, Riyan, don't switch off the camera. Now I'll not give you any warning. मैं सीधा रिमूव कर दूंगा. पूरव, ऋषभ, रोहित राव, क्रिश शाह, राही जोशी, रोहित राव, ऋषभ. Rishabh, I'm putting you in waiting room. Come back when you switch on the camera. Ganesh, Ganesh Shroff को भी जाओ waiting room में. Okay. Then structurally, the aldehydes and ketones have the carbonyl group, which is represented as C double bond O. And because of the double bonded carbon, the hybridization is sp2, geometry is planar, and the bond angle is 120 degree. And the carbonyl group is polar because of the difference in electronegativity. So oxygen being more electronegative, the electron density is more towards oxygen, and we can show the complete polarization as C with a plus and O with a minus. मतलब carbonyl as a group has a electron deficient center which could be attacked by electron deficient which would be attacked by no electron deficient को attack electrophile कैसे करेगा? Nucleophile. And O is electron rich center which will be attacked by electrophile. So that is how the chemical properties of the carbonyl we are going to understand. Okay, and this polarity gives a dipole moment of the carbonyl group in the range of 2.3 to 2.8 debye. Coulomb meter unit is called debye in the smaller dimensions. Got it? Now coming to the nomenclature. Now nomenclature we have already कर चुके हैं. I'll just brief with some of the examples. So let's start with first one. I have CH3, C, CH3, CH3, and CHO. Now to name the aldehydes in common name system, either you identify the alkyl group which is bonded to CHO, apply the prefix and add the word aldehyde, या फिर टोटल कार्बन को काउंट करो और फिर उसके हिसाब से प्रीफिक्स लगाओ. एक ही बात है. Now if I ask you the alkyl which is bonded to CHO, what is that? Third butyl. And butyl के लिए what is the corresponding prefix? Valor. या फिर if you look at the total carbon for valor, it is obviously going to be 5. तो ये जो है ये आपका R का इंफॉर्मेशन दे रहा है, और राइट हैंड साइड पे जो मैंने लिखा है ना, that gives you the total carbon information. Is that clear? Yes. ठीक है. So if you look at the structure, there is a third butyl which has a prefix of valor
and then add the word aldehyde. कॉमन नेम का रूल सिंपल है, प्रीफिक्स प्लस अल्डिहाइड। लेकिन सिर्फ वेलर लिखना इनकम्प्लीट होगा, बिकॉज ब्यूटाइल कैन हैव 4 आइसोमेरिक स्ट्रक्चर्स, एन, आइसो, सेक एंड टर्ड। ये कौन सा ब्यूटाइल है? Third. टर्ड। तो वेलर के पहले भी आप सेम प्रीफिक्स अप्लाई करोगे एंड द फाइनल नेम विल बी टर्ट वेलर अल्डिहाइड। अंडरस्टूड? Yes, sir. Apart from this particular name, there is also a Greek letter naming system which is used for aldehydes. अब Greek letter मतलब अल्फा बीटा गामा वाला नेमिंग सिस्टम। And according to that, अल्फा कार्बन कौन सा है इस स्ट्रक्चर में? Which is the alpha carbon? C. Meaning it is a carbon which is bonded to CH. CHO. Yani in general, the carbon which is bonded to the functional group is always the alpha carbon. उसके बाजू वाला होगा बीटा, then gamma, delta, omega, and so on. Now on the alpha carbon, I can say that this 2-methyl group are substituents. तो जैसे हम नंबरिंग के साथ लिखते हैं वैसे यहाँ पर ग्रीक लेटर के साथ लिखना है, अल्फा कॉमा अल्फा डाइमिथाइल। Now, barring the 2-methyl groups, how many carbon do you see in the chain? 3. 3. And 3 carbon wala prefix in the common name system is what? 3 carbon. प्रोपियन। ठीक है, ये टेबुलर फॉर्म में जो दिया है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बिना इसके नाम नहीं समझेगा। तो अब 3 कार्बन वाले अल्डिहाइड का नाम यहाँ पर लिखोगे बिकॉज वी हैव कंसिडर्ड मिथाइल एज अ सब्स्टिट्यूएंट। तो अब अगर आप पूछोगे इन दोनों में नेमिंग में फर्क कैसे आया, तो वेलर इज बिकॉज ऑफ द टोटल कार्बन बीइंग काउंटेड इंक्लूडिंग द ब्रांचेस, and propion word is barring the substituents. समझा? Yes or no? Yes, sir. अब IUPAC तो सिंपल है। For aldehydes the numbering always will be done from CH. CHO, and from right to left will have 3 carbon as a parent. अब सेकेंड कार्बन पे 2 सब्स्टिट्यूएंट है तो 2,2 डाइमिथाइल, and the parent of 3 will be propane, and the suffix for aldehyde is al, and by default इसकी पोजीशन 1 ही रहेगी, तो लिखो या ना लिखो, it's okay. Next, CH3 CH CH3 CHO, common name, टोटल कार्बन कितने? 4. तो प्रीफिक्स क्या आएगा? Beta. और ब्यूटर के पहले Iso. आइजो या सेक, बोथ आर ओके, बिकॉज ये प्रोपाइल है तो प्रोपाइल में सेक या आइजो दोनों चलता है, बट कॉमनली वी नेम इट एज आइजो। मैं यहाँ पर यूज करूंगा आइजो ब्यूटेरल्डिहाइड, बट 100% सेक ब्यूटेरल्डिहाइड इज करेक्ट। एंड इसका ग्रीक लेटर नेम क्या होगा क्विकली? Alpha methyl अल्फा मिथाइल propion aldehyde. अब 3 कार्बन का प्रोपियन अल्डिहाइड। और अगर आप ग्रीक लेटर को आईयूपीएसी से कोरिलेट करोगे ना, तो डायरेक्ट आईयूपीएसी मिलता है। अल्फा इज ऑलवेज द सेकेंड कार्बन ऑफ अल्डिहाइड, डू यू अग्री? सब्स्टिट्यूएंट का नाम तो सेम ही रहने वाला है, और प्रोपियन अल्डिहाइड के लिए 3 कार्बन का पेरेंट लिख लो, प्रोपेनल। जस्ट ट्राई टू कोरिलेट द ग्रीक लेटर नेम एंड द आईयूपीएसी, दे आर सिमिलर। यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, तो ग्रीक लेटर नेमिंग मैंने आपको बता दिया, और भी कुछ एग्जांपल्स है विच यू कैन सी इन द नोट्स। बाय द वे, वॉल्यूम 6 में अल्डिहाइड कीटोन्स एंड अमाइन्स दे आर गिवन एज हैंड रिटन। ठीक है, तो उसको फॉलो करो, एवरीथिंग इज गिवन व्हाट आई एम डिस्कसिंग। नाउ दिस इज अ कीटोन बिकॉज कार्बोनाइल दोनों तरफ कार्बन चेन से लिंक्ड है,
And in the common name system for ketone, we have to identify the alkyl groups and add the word ketone. Which alkyl do you see on the left? Isobutyl, Isobutyl. On the right, methyl, methyl. Alphabetical order. Iso ka I needs to be considered, right? So it's isobutyl methyl ketone. That's how you name the ketone in common name system. IUPAC mein longest chain will be of how many carbons? 5, 5, and the numbering will be done from right, such that the carbonyl gets the lowest, lowest number. So this will be named as 4-methyl as a substituent, parent of 5-carbon pentane, and the position of the ketone is 2. So 4-methyl pentane 2. Okay, now coming to some cyclic examples. Let's say I have a cyclic ring with a CHO, C double bond O, and NH2. So now it is a polyfunctional compound. तो सिर्फ IUPAC name आएगा. And polyfunction के लिए first you have to think about the priority, priority. And out of aldehyde, ketone, and amine, the priority goes to aldehyde, aldehyde has a higher priority. So aldehyde ka carbon will be numbered 1. Then ketone as a substituent would be called oxo, oxo, and NH2 would be called amide, amide नहीं amino. अरे बाबा amide और amine में फर्क है ना. CONH2 is amide and NH2 is amine. और इनके प्रीफिक्सेस के लिए अमाइडो और अमाइनो यूज होता है. So this will be 4 amino 2 oxo. And what is the parent? benzaldehyde, Sorry, cyclohexane, cyclohexane. And what do we add when it is bonded to CHO? Carbaldehyde. Carbaldehyde. Now, cyclic ring mein, whenever we have a CHO on the ring, we always add the name carbaldehyde, because writing cyclohexane doesn't include the carbon of CHO, right? इसलिए कार्बन वाले फंक्शनल ग्रुप्स के लिए कुछ अलग सफिक्सेस दिए गए हैं. कार्बल्डिहाइड, कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोनाइट्राइल कि नहीं. Next, let's say I have an aromatic compound with a CHO, OCH3, and OH. Now, this particular aromatic aldehyde is commercially called vanillin. And this is the same compound which is used in vanilla flavor, vanilla essence. Vanillin. बहुत सारे aromatic aldehydes or aromatic ketones have different fragrances which could be used in variety of applications. Vanillin इसका commercial name है. अब IUPAC देना है तो priority obviously will go to Aldehyde. aldehyde, and the numbering will be in the clockwise direction. The substituent as methoxy and hydroxy. 4-hydroxy, 3-methoxy, and now the parent is Benzaldehyde. 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 तो ये हो गया साइक्लिक के कुछ एग्जांपल्स. ठीक है, अब नेक्स्ट, लेट्स से आई हैव अ benzene ring with C double bond O and CH2CH3. Now, whenever we have a benzene with a ketone, commonly they are called phenols, phenones. अरोमेटिक कीटोन्स को फिनाइल विद अ कीटोन के हिसाब से फिनोन नाम दिया गया है. एंड कॉमन नेम में टू द फिनोन वॉट एवर इज द अल्काइल उसका प्रीफिक्स उठाओ एंड ऐड द वर्ड ओ फिनोन. Add the word o phenone. So what is the prefix for ethyl?
Propion. प्रोपियोन। तो इथाइल फिनाइल कीटोन का कॉमन नेम हो जाएगा प्रोपियो नोफिनोन, प्रोपियोन ओफिनोन या प्रोपियोफिनोन भी बोलते हैं, वो भी चलता है। इसमें अगर ON को निकाल भी दिया और शॉर्टली प्रोपियोफिनोन लिखा तो भी वैलिड नेम है। ठीक है, तो नॉमेनक्लेचर का ट्रिक क्या है, रूल क्या है, whatever is the alkyl to phenone उसका prefix and then add the word ophenone। मानव सिस्ट्रेट, मानव प्रोपियोफिनोन और प्रोपियोनोफिनोन। अब IUPAC में what will be the parent chain? 3 carbon because carbonyl is a functional group, तो उसके साथ the 3 carbon would be considered to be parent। Now इस nomenclature में अगर देखोगे तो ketone is getting a position 1। This is the only compound wherein the ketone can get a position as 1। Generally ketones are the non-terminal compounds जहां पर carbonyl कार्बन चेन के बीच में आता है, तो उसका 1 पोजीशन होना पॉसिबल नहीं है एलिफेटिक चेन में। बट अरोमेटिक में फिनोन्स वाले कंपाउंड में the nomenclature will be always of the type 1-phenyl alkane 1-one। अल्केन 1-one, इस केस में पेरेंट प्रोपेन है तो इट्स 1-phenyl propane 1-one। ये जो नॉमेनक्लेचर का वे है ये हमेशा फिनोन्स के लिए सेम ही रहेगा। क्लियर? Yes, sir. Now let's say I have a cyclic ring with a COH, CHO and C double bond, aldehyde ketone acid। अगेन एक पॉलीफंक्शनल कंपाउंड है तो प्रायोरिटी गोज टू Acid. acid। And now the numbering will be done in clockwise or anti-clockwise? Clockwise. Clockwise. F Alphabetic. comes before. Correct। So when the substituents are at equidistant positions, you number in such a way that जो substituent alphabetically पहले आएगा उस substituent को numbering भी पहले मिलेगा। That's why the clockwise would be correct, and hence the IUPAC name would be 3-formyl 5-oxo and क्या लिखे Cyclohexane. Carboxylate. cyclohexane carboxylic acid। cyclohexane and then simply add the word carboxylic acid। Clear? Yes. ठीक है, तो और मैंने बहुत सारे और एग्जांपल्स दिए हैं, जस्ट गो थ्रू देम एंड प्रैक्टिस द नॉमेनक्लेचर। Now we start with the preparation methods। Now the good news is many of the preparation methods are similar to the previous chapters which are already being done। ठीक है, जैसे look at the first preparation of aldehyde ketone, it's by oxidation of alcohol। And if you recollect oxidation का statements, what was the first statement? Ethanol oxidizes to form aldehyde. नहीं, general 1 degree alcohol to aldehyde. 1 degree to aldehyde and further to acid. correct। 1 degree alcohol on oxidation first gives an aldehyde, and aldehydes are easily oxidizable, so on further oxidation it gives an acid। but अगर मुझे aldehyde पे stop करना है because I want to prepare an aldehyde, then we have to use PCC. PCC. mild oxidizing agents like PCC or PDC, which doesn't affect the carbon to carbon double bond। ये चीज ऐसे याद रखो। तो यहाँ पर mild oxidizing agents के through a primary alcohol could be oxidized to aldehyde and the reaction could be stopped, whereas a secondary alcohol on oxidation gives ketone, and ketone का further oxidation is Mixture of acids. mixture of acids।
but that oxidation will happen only under Vigorous condition. vigorous condition because कीटोन का ऑक्सीडेशन इन्वॉल्व्स द सीसी का ब्रेकडाउन. इसलिए नॉर्मल कंडीशन में कीटोन का फर्दर ऑक्सीडेशन नहीं होगा, बट नॉर्मल कंडीशन में अल्डिहाइड विल ऑलवेज ऑक्सीडाइज टू द एसिड. तो इट हैज टू बी अ कंट्रोल्ड रिएक्शन. कीटोन में कंट्रोल नहीं किया तो भी चलेगा. So that's the first preparation method which we have anyways done in alcohol in very much detail. Next, by alkaline hydrolysis of geminal dihalides. Now we know that a geminal dihalide in which halogens are on the same carbon. If we do the alkaline hydrolysis with aqueous KOH, X is going to get substituted by OH. OH, and the geminal dihalide is going to get converted to geminal diol. But the moment we have a geminal diol, we know it is Unstable. unstable because the two OH groups are so very close to each other that it immediately loses a water and forms aldehyde. carbonyl compound which can be aldehyde or ketone. That's it. तो ये भी हमने डिस्कस किया हुआ है. नथिंग न्यू इन इट. अब अल्डिहाइड बनने के लिए दिस वैलेंसी ऑफ कार्बन should be at least bonded to one H. hydrogen and दूसरा can be any alkyl, aryl or H. But H होना जरूरी है. One of the valency should be H. So if I generalize that and condense करके लिखो तो I can write R with C, H and X2 चलेगा. If I place R and H, the corresponding product will be an aldehyde. So RCHX2 का alkaline hydrolysis will give you RCHO. और शॉर्टकट देखोगे तो यहाँ पर X2 उड़ाओ, ऑक्सीजन लगाओ, और यही हो रहा है ना. X2 की जगह दो OH आ रहे हैं जिसमें से वाटर निकलने के बाद एक ही ऑक्सीजन बच जाता है. So when you spot a geminal dihalide of the type RCHX2, the product is RCHO. Is that understood? And for a ketone to be prepared from this reaction, the two valences has to be satisfied with alkyl. So condensed form में can I write RCX2 R dash? और इसका भी अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस में X2 उड़ाओ एंड O लगाओ. ऐसे ही ध्यान रखो RCO R dash. करेक्ट. Yes, sir. अब एग्जाम्पल के ऊपर आते हैं. Let's say I have CH3, CH2, CH, Cl2. Just by looking at this, can you tell me the product directly? Propanol. Propanol. Cl2 उड़ाओ, ऑक्सीजन लगाओ, एंड आप विजुअलाइज कर सकते हो कि प्रोडक्ट क्या मिलेगा. इट्स प्रोपियोनल्डिहाइड या प्रोपेनॉल. ये होता है शॉर्टकट. ये होता है देखने से डायरेक्टली प्रोडक्ट का आइडेंटिफिकेशन. दैट्स व्हाट यू हैव टू मेक ऑर्गेनिक. वैसे ही स्ट्रॉन्ग बनेगा. ठीक है. तो अब हमें रिएक्टेंट से डायरेक्ट प्रोडक्ट तो समझ में आ गया. इट इज प्रोपियोनल्डिहाइड या प्रोपेनॉल. अब नॉमेनक्लेचर की बात कर लेते हैं. हाउ डू वी नेम जेमिनल डाइहाइड्स? आइडीन. तो टोटल कार्बन्स काउंट करो. अल्काइल का नेम एंड ऐड द वर्ड आइडीन. व्हाट वुड बी द नेम? टोटल कार्बन 3 है तो प्रोपाइल, ईडीन एंड 2 क्लोरीन के लिए डाइक्लोराइड. हो गया नाम. ठीक है. अब यहाँ पर इसका IUPAC. सॉरी, थोड़ा जोर से प्लीज. So do we have to write the number? I'll come to that. Just give me 1 minute. एक और एग्जांपल मैं डिस्कस करूंगा, फिर I'll come to that. पहले मुझे IUPAC से बताओ. 1,1 dichloro. 1,1 डाइक्लोरोप्रोपेन.
ठीक है, तो स्ट्रक्चर से डायरेक्ट प्रोडक्ट समझ में आ गया, नाम दिया होगा तो उससे प्रोडक्ट भी इजीली समझ में आ जाएगा वंस यू नो द स्ट्रक्चर। तो ये हो गया अल्डिहाइड का। अब दूसरा एग्जांपल मान ले लेते हैं। अब ध्यान देना, I have CH3 CCl2 CH3. If I do alkaline hydrolysis, the final product is going to be Phenol. propanone. Yeah, most commonly called Acetone. acetone. ठीक है, अब नेमिंग पे आते हैं। Again, this is a geminal dihalide. How many carbons do you see in total? 3. 3. Once again, propyl and iodine and dichloride. So propylidine dichloride. अब एक प्रॉब्लम दिखना चाहिए आपको। प्रॉब्लम इज earlier compound also we called propylidine dichloride और इसको भी propylidine बोलते हैं। So obviously this needs to be differentiated because the structure is different and the corresponding product is also different. So now propyl के साथ we need to apply the prefix ना। जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ सिर्फ प्रोपाइल लिखना गुनाह है, तो प्रोपाइलिडीन लिखना भी तो गुनाह ही हुआ ना। And you can clearly understand the crime which we have done over here by not writing the prefix. अब जब आपके प्रोपाइल में एक सिंगल वैलेंसी होती है तो वी राइट एन प्रोपाइल। अभी इसी में अगर दो फंक्शनल ग्रुप अटैच करेंगे या दो ग्रुप्स अटैच करेंगे तो कुछ ऐसा हो जाएगा आपकी नहीं। तो आपका रेडिकल जो है, बोथ द रेडिकल्स दे आर ऑन द टर्मिनल और द फर्स्ट कार्बन, hence I can call it as N-propylidine dichloride. Yes or no? Yes, sir. And isopropyl में the radical is on which carbon? Second. Second. तो इसका H भी निकाल के अगर एक और रेडिकल बना दूं तो यही स्ट्रक्चर यहाँ पर दिखेगा। तो इसको मैं आइसोप्रोपिलिडीन डाइक्लोराइड बोल दूं। Is this justified now? Yes, sir. So now these two examples are very important. N-propylidine dichloride on alkaline hydrolysis gives an aldehyde that is propanol. Isopropylidine dichloride on alkaline hydrolysis gives acetone. ये होगा आपका स्टेटमेंट एनालिसिस। ठीक है, और एक चीज आपको बता देता हूँ। इफ यू लुक एट द RCHX2 स्ट्रक्चर, don't you think the halogens are always going to be on the first carbon? मतलब इसका IUPAC नेम हमेशा 1,1 डाइक्लोरोअल्केन आएगा, 1,1 डाइक्लोरोअल्केन आएगा। और क्योंकि यहाँ पर दो हेलोजन टर्मिनल पे है इसीलिए तो आपको अल्डिहाइड मिल रहा है। दैट इज वाई इस तरह के जेमिनल डाइहैलाइड को हम एक नाम दे देते हैं टर्मिनल जेमिनल डाइहैलाइड। क्या बोला? Terminal. Terminal. And when the halogens are in the middle of the chain, we will call it as Non-terminal. non-terminal. ठीक है, तो अब आप स्टेटमेंट बना सकते हो। स्टेटमेंट विल बी टर्मिनल जेमिनल डाइहैलाइड ऑन AH मतलब Alkaline hydrolysis. alkaline hydrolysis gives an Aldehyde. aldehyde, and non-terminal geminal dihalide on alkaline hydrolysis gives a ketone. Ketone. With a shortcut X2 उड़ाओ ऑक्सीजन लगाओ, X2 उड़ाओ ऑक्सीजन लगाओ। Adopt the language, it will make the things very simple. समझ में आ गया? अब एक चीज नोट कर लो। If I have C6H5 CHCl2, tell me what will be the edene वाला name? Benzylene. सॉरी, मैंने नाम पूछा, नाम स्ट्रक्चर का नाम। प्रोडक्ट तो क्लियर होना चाहिए। Cl2 उड़ाओ ऑक्सीजन लगाओ, इट विल बी बेंजल्डिहाइड एज अ प्रोडक्ट। नाम क्या होगा इसका?
Benzylidene dichloride. Benzylidene dichloride. Now this benzylidene dichloride is shortly प्यार से called benzyl chloride. Reason? यहां से आपको हाइड्रोलाइज करने पर अल्डिहाइड मिलता है विच इज बेंजल्डिहाइड. तो कहीं बार आपको बेंजिलिडीन डाइक्लोराइड नहीं देंगे, यू विल बी गिवन द नेम एज बेंजल क्लोराइड. बेंजल, हाँ, अल, ए एल. अल से ये वाला अल्डिहाइड को आप हमेशा लिंक कर सकते हो. ये नाम काफी इंपॉर्टेंट है. तो स्टेटमेंट आया कि बेंजल क्लोराइड ऑन अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस गिव्स, तो स्ट्रक्चर और उसका प्रोडक्ट आइडेंटिफाई करने आना चाहिए. This is note with respect to the name. Understood? Yeah. ठीक है. तो अब अगर मैं इस रिएक्शन का समरी एज अ स्टेटमेंट करूं तो सिंपल है. टर्मिनल जेमिनल डाइहाइड का अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस अल्डिहाइड देता है, नॉन टर्मिनल कीटोन देता है. टर्मिनल का स्ट्रक्चर होता है RCHX2 एंड उसका प्रोडक्ट हमेशा अल्डिहाइड होगा. एंड नॉन टर्मिनल का RCH2R डैश और उसका प्रोडक्ट हमेशा कीटोन होगा. बाकी तो नॉमेनक्लेचर एक बार समझ लोगे तो इट शुड बी क्लियर. फाइन. Yes, Yes, sir. And third one is also a well-known reaction, ozonolysis of alkenes. Repeated है, right? मैं इसको समराइज कर देता हूँ. सबसे पहले मुझे बताओ ओजोनोलाइसिस कितने टाइप का था? Reductive and oxidative. Reductive and oxidative. What was the difference? In oxidative, aldehyde becomes acid. Correct. And what is the difference in the reagent? Zinc. as zinc was it. Zinc. So reductive takes place in the presence of zinc. Oxidative takes place in the absence of zinc. ठीक है. तो अब इसमें शॉर्टकट बताया था ओजोनोलिसिस का, डबल बॉन्ड तोड़ो एंड ऑक्सीजन जोड़ो. द मोमेंट यू डू दैट, लेफ्ट हैंड साइड व्हाट इज द प्रोडक्ट? Acetone. Acetone. And right hand side Acetaldehyde. acetaldehyde. So these will be the products when we are doing reductive ozonolysis. But if the same alkene is oxidative ozonolized, then क्या फर्क आएगा? Acetone and acetic acid. Acetone and acetic acid. मतलब the ketone has to be retained because उसका further oxidation मुश्किल होता है, but aldehydes are easily oxidizable. It will change into carboxylic acid. ये हो गया oxidative ozonolysis. That is the only important part. Next, by hydration of alkynes है वो, नोट्स में प्रॉपर दिया है. by hydration of alkynes, ये भी हम कर चुके हैं. Now, if someone remembers this reaction, tell me what was the reagent and how was the reaction proceeding. Quickly, reagent क्या था? Water is added twice across the triple bond and then boiled to it as it. Water is added twice. वाटर का 1 मोल ही ऐड करते हैं, बट इट इज एडेड इन द प्रेजेंस ऑफ 40% H2SO4, 1% HgSO4, which actually forms a cyclic mercurium ion. और यहाँ पर एक इंटरमीडिएट बनता है इनॉल, which undergoes a rearrangement called Tautomerism. टॉटोमेरिज्म. का फंडा इधर है. अब इस रिएक्शन के भी मैंने केसेस दिए थे. मैं वापस आपको बोल रहा हूँ, when you identify the reactions, you should always identify on the basis of cases. जैसे गोइंग बैक टू द अल्कोहल्स चैप्टर, रिडक्शन ऑफ अकाई 5 स्टेटमेंट दिए थे. अगर वो याद है तो पूरा रिएक्शन समरी आपके दिमाग में है. वैसे ही हर रिएक्शन में केसेस बाय केसेस याद रखना है. जैसे देखो यहाँ पे ओजोनोलिसिस में तो कुछ याद नहीं रखना है,
अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस में केस 1 टर्मिनल अल्डिहाइड देता है, नॉन टर्मिनल कीटोन देता है, खत्म। जब आप रिवाइज करने बैठो आपके दिमाग में इतना ही होना चाहिए, ठीक है। ऑक्सीडेशन में प्राइमरी अल्डिहाइड देगा, सेकेंडरी कीटोन देगा, अल्डिहाइड पे स्टॉप करने के लिए माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स की जरूरत पड़ेगी, दैट्स इट। दिस इज हाउ यू हैव टू रिमेंबर द रिएक्शंस इन अ वेरी इजी मैनर। तो हाइड्रेशन में 3 केसेस मैंने बताए थे, 3 केसेस। केस 1 वाज ऑफ द सिंपलेस्ट अल्काइन कॉल्ड Acid. एसिटिलीन और इथाइन, which is HC triple bond CH। ये रिवीजन हो रहा है आपका। हाइड्रेशन मतलब you add the water, and addition of water was done in the presence of 40% H2SO4 and 1% of HgSO4। Now अल्काइन सिमेट्रिकल है तो वाटर को कैसे भी ऐड करो फर्क नहीं पड़ेगा। तो if I add the H on the first carbon I'll get H2C, and the OH on the second carbon I'll get CHOH, and the triple will change to double। If you look at this famous group, what is this called? Vinyl. Vinyl। and vinyl के साथ जो OH है that would be called vinyl alcohol। IUPAC में इथेनॉल या जनरली अनसेचुरेटेड अल्कोहल को इनॉल बोलेंगे। अब ये इनॉल अनस्टेबल होता है तो इट अंडरगोज अ रीअरेंजमेंट, एंड उस रीअरेंजमेंट में व्हाट शिफ्ट्स टू वेयर, व्हाट शिफ्ट्स टू वेयर, H of OH shifts to alpha carbon. H of OH shifts to not alpha, गलत, Beta. बीटा, बीटा। H of OH shifts to the beta carbon, ये मैंने टॉटोमेरिज्म का बताया था स्टेटमेंट। H of OH shifts to the beta वाला कार्बन। अब जब माइग्रेट करेंगे तो फाइनली आई गेट H3C डबल का सिंगल, हाँ सिंगल, and this single will change to double, so I will add CH double bond O, and the aldehyde is acetaldehyde। तो ये जो रीअरेंजमेंट H के माइग्रेशन से होता है that is called keto-enol tautomerism। and here the equilibrium is more towards which compound, enol या carbonyl? Carbon. Carbonyl। what was the reason? CO has beta bond. CO has bigger or higher bond energy। CO ज्यादा स्टेबल है C डबल बॉन्ड C से, इसलिए इस केस में ये जो इक्विलिब्रियम है ना इट विल बी मोर टुवर्ड्स द कार्बोनाइल साइड। बट कौन से केस में इनॉल डोमिनेट करता है? Beta diagonal. बीटा डाइकीटोन। एंड उसका डोमिनेट करने का रीजन था इंट्रामोलिकुलर एच बॉन्डिंग एंड रेजोनेंस। तो ये पूरा टॉटोमेरिज्म में हम कर चुके हैं। अब केस 2 and 3 was of the alkynes classified as terminal and non-terminal। टर्मिनल अल्काइन वो होगा जिसमें ट्रिपल बॉन्ड कार्बन विल बी बॉन्डेड टू H at least one, and other side I will have an alkyne। अब इफ यू रिमेंबर मैंने इसका स्टेटमेंट दिया था कि टर्मिनल अल्काइन ऑन हाइड्रेशन गिव्स अ स्पेशल टाइप ऑफ कंपाउंड। है याद किसी को? So can you टर्मिनल अल्काइन का हाइड्रेशन गिव्स अ स्पेशल टाइप ऑफ कंपाउंड, कुछ स्पेशल मिल रहा था वहां पर। नहीं बताया तो आप जस्ट वाटर को ऐड करो, यहाँ पर भी वाटर को ऐड करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ 40% H2SO4 1% HgSO4। Now here the alkyne is unsymmetrical, so the addition has to be done by MR. MR। और MR के हिसाब से the water का H plus will go to the carbon having more hydrogen। So water का H will go on the right वाला carbon and OH will go on the left वाला carbon। अब ये जो इनॉल है उसका H of OH शिफ्ट जब करेगा ना it will give you R C double bond O CH3। क्या मिल रहा है? methyl ketone? The special thing here is it's a methyl ketone, where one of the alkyl is always going to be methyl।
यानी जो टर्मिनल कार्बन का कार्बन है दैट इज ऑलवेज हाइड्रेटेड टू द मिथाइल ग्रुप. तो अब शॉर्टकट, whatever is the R of the terminal alkyne, copy and paste. And once you know methyl ketone, तो R को कॉपी करो and then C डबल बॉन्ड और CH दे दो, फिक्स ही है. ये हो गया आपका केस 2. अब केस 3 के लिए नॉन टर्मिनल अल्काइन. नॉन टर्मिनल मतलब दोनों तरफ अल्काइल ग्रुप्स होंगे, लेट्स से R एंड R डैश. नॉन टर्मिनल. अब यहाँ पर कैन वी अप्लाई द MR, मार्कोनिकॉफ रूल अप्लाई कर सकते हैं क्या? क्या प्रॉब्लम है? No. हाँ, हाइड्रोजन. ट्रिपल बॉन्ड कार्बन पे कोई H ही नहीं है, तो यहाँ ट्रिपल बॉन्ड कार्बन पे H नहीं है, इसलिए हम MR अप्लाई नहीं कर सकते. तो यहाँ पर जो वाटर का एडिशन है दैट इज टू बी डन ऑन द बेसिस ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट कॉन्सेप्ट. तो अज्यूम करता हूं मैं कि R डैश अल्काइल ग्रेटर है R से, यानी ये R डैश अगर मैं इथाइल रख देता हूं तो R को मैं मिथाइल रखूंगा, R डैश बड़ा है. Between R dash and R, which has a higher or a stronger inductive effect? R dash. More the carbon, more is the inductive effect. तो R dash का inductive effect बड़ा है. एंड हमें पता है R का inductive प्लस आई वाला होता है, यानी donating. Can I say there is a more plus I for R dash? And because of that, R dash will donate its electron to the carbon, triple bonded carbon, which in turn will migrate the pi electrons onto the other carbon. तो यहाँ पर इंडक्शन का इफेक्ट हो रहा है, जहां पर R डैश इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर रहा है और pi इलेक्ट्रॉन स्विच कर रहा है फ्रॉम राइट टू लेफ्ट. अब जैसे ही वो राइट टू लेफ्ट में स्विच करेगा, इट विल एक्वायर अ पोलैरिटी, मीनिंग दिस कार्बन व्हिच हैज डोनेटेड विल एक्वायर अ डेल्टा प्लस, एंड अदर कार्बन जिसके पास इलेक्ट्रॉन आए वो डेल्टा माइनस. बराबर. अब यहाँ पर वाटर को ऐड करना है, तो अब कॉन्सेप्ट सिंपल है. प्लस विल गो टू द कार्बन विच इज नेगेटिव. तो आर सी पे आएगा H डबल बॉन्ड, C पे आएगा OH एंड R डैश. वंस अगेन ये अपना एक अनसेचुरेटेड अल्कोहल है विच इज कॉल्ड इनॉल, एंड इनॉल इतने स्टेबल नहीं होते हैं तो टोटोमराइज होगा, जिसमें H ऑफ OH गोज टू द बीटा वाला कार्बन. ये याद रखना है ऐसे. फाइनली आपको मिलेगा RCH2 C डबल बॉन्ड O एंड R डैश. मतलब यू आर गेटिंग अ कीटोन ओनली. बट इंपॉर्टेंट है कि जो R डैश है उसके साथ कीटोनिक ग्रुप आया, R के साथ तो मिथाइलिन ग्रुप आ गया. समझा? Yes, sir. अब 3 केसेस आपके सामने हैं, उसको याद रखने के स्टेटमेंट्स. केस 1, एसिटिलीन ऑलवेज हाइड्रेट्स टू गिव acetaldehyde. A terminal alkyne on hydration gives Methyl ketone. methyl ketone, and non-terminal gives a Normal ketone. normal ketone. तो अब अल्कीन्स में जब हमने हाइड्रेशन किया था, अल्कीन्स में तो हमने 3 तरह के हाइड्रेशन को डिस्कस किया था. कैन समवन नेम देम? ACH, HBO and OMD. सुपर. ACH, HBO and OMD. और तीनों के यूनिक मैकेनिज्म से. ACH is E1 mechanism. Oh, sorry. Acid catalyzed hydration undergoes the electrophilic addition mechanism, जहां पर कार्बोकैटायन बनता है. So you need to think about the rearrangement and then finally obtain the alcohol. HBO was hydroboration oxidation, in which the alcohol obtained was according to Anti-Markovnikov. anti-Markovnikov's rule. Indirect anti-Markovnikov's rule हो रहा था. And OMD gives you the alcohol as per Direct Markovnikov. डायरेक्ट मार्कोनिकॉफ रूल. मतलब यहाँ पे कोई भी तरह का रीअरेंजमेंट
नहीं करना है। इनफैक्ट मैंने एक एल्कीन दिया था और तीनों रिएक्शन के प्रोडक्ट्स बताए थे जो कि डिफरेंट थे। 3 मिथाइल ब्यूट 1 वाज द अल्कीन। ठीक है। Yes, sir. तो जैसे हम अल्कीन्स में अलग अलग टाइप से हाइड्रेशन करते हैं, अल्काइंस में भी कर सकते हैं। जो हम यहाँ पर हाइड्रेशन कर रहे हैं वो कौन सा वाला है? विच हाइड्रेशन इज दिस? ECH. ACH। ठीक है। और यहाँ पर तो कार्बोकटाइन नहीं आ रहा है, तो कोई रीअरेंजमेंट का सोचना नहीं है। इनफैक्ट यहाँ पे ACH बोलो या OMD बोलो, फर्क नहीं पढ़ा. नहीं पड़ेगा क्योंकि कोई रीअरेंजमेंट नहीं हो रहा है। अब यही चीज मैं HBO के लिए बताता हूँ, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। जस्ट पे अटेंशन। Once again, I have the case of terminal alkyne RC triple bond CH और उसको मैं वाटर ऐड कर रहा हूँ। अब HBO के केस में हम फर्स्ट स्टेप में B2H6 ऐड करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ THF एंड देन ट्राइअल्काइल बोरेन जो बनता था उसको नेक्स्ट स्टेप में ऑक्सीडेशन करते थे विद पेरोक्साइड एंड OH माइनस। करेक्ट। Yes, sir. ठीक है। तो ये रिएजेंट लिखने का तरीका है HBO का। अब यहाँ पर डायरेक्ट प्रोडक्ट अगर समझना है तो वाटर को ऐड करो अकॉर्डिंग टू NTMR। तो नाउ H plus will go to which carbon, left या right? Left. H plus will go to that carbon which is having less hydrogen, यानी लेफ्ट वाले में जाएगा और OH जाएगा राइट के पास। बाकी नहीं। Yes, sir. तो यहाँ पर आपको मिलेगा R CH double bond CH and OH, which is once again an unsaturated alcohol called enol, which will undergo tautomerism, and H of the OH will be shifted on, everyone, shifted on Beta carbon. beta carbon, and you get the product as RCH2CHO. That's an aldehyde. पहले रिएक्शन में क्या मिल रहा था टर्मिनल से? Methyl ketone. मिथाइल कीटोन। और HBO से उसी टर्मिनल अल्काइन का मिल रहा है अल्डिहाइड। डिफरेंस क्लियर? Yes, sir. और नॉन टर्मिनल में RC ट्रिपल बॉन्ड C R डैश का अगर HBO रिएक्शन किया तो आपको नॉर्मल कीटोन ही मिलेगा, बट नाउ द R and R डैश का पोजीशन विल बी रिवर्स ना Yes, sir. भाई। अब जो इनॉल मिलेगा वो OH यहाँ पर और H यहाँ पर वाला मिलेगा ना। तो अब मुझे डायरेक्ट वे में अगर बताना है तो R विल बी विद द कार्बोनाइल एंड देन CH2 विद R डैश, CH2 विद R डैश। तो ये हो गया मेरा जनरल वे ऑफ आइडेंटिफाइंग द। अब मैं एग्जांपल देता हूं, आप मुझे बताना प्रोडक्ट्स क्या मिलेगा। सो लेट्स टेक CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH, दैट्स प्रोपाइन। प्रोपाइन का ACH विल गिव व्हाट? Acetone. एसीटोन। क्योंकि RC ट्रिपल बॉन्ड CH का RCOCH3 मिलने वाला है, तो R को तो कॉपी पेस्ट ही करना है। तो डायरेक्ट प्रोडक्ट समझ में आना चाहिए, दैट इज एसीटोन। और इसी प्रोपाइन का अगर आप HBO करोगे तो क्या मिल रहा है? Propanol. प्रोपेनल, CH3 CH2 एंड CHO। समझा? Yes, sir. बस ये एग्जाम्पल अगर आपने दिमाग में रखा, हो गया ये पूरा रिएक्शन का समरी इज डन। Similarly, I take C2H5 C triple bond C and CH. This is ethyl methyl acetylene. अब इसका भी दो वेरिएशंस करता हूँ, ACH करता हूँ और HBO करता हूँ। बोलो पहले केस में कार्बोनाइल ग्रुप किसके साथ लगाओगे? Left. दैट इज अ बिगर अल्काइल, हायर अल्काइल ना। देखो R डैश को मैंने ग्रेटर लिया है तो ACH में कार्बोनाइल किसके साथ है? Beta. बस। तो अब डायरेक्ट प्रोडक्ट लिखने का तरीका C2H5 C डबल बॉन्ड O और दूसरे ट्रिपल बॉन्ड कार्बन का CH2 और R डैश या R जो भी है। बट वही अगर HBO के साथ करोगे तो द कार्बोनाइल विल बी विथ
मिथाइल मिथाइल, तो यहाँ C2H5 के साथ CH2 आ जाएगा, ट्रिपल बॉन्ड कार्बन कार्बोनाइल और CH3. लुक एट द डिफरेंस इन द प्रोडक्ट्स. दोनों में पेरेंट तो पेंटेनोन ही आया है, लेकिन फर्स्ट केस इज पेंटेन 3-on एंड सेकेंड केस इज पेंटेन 2-on. And this is pent 2-ine. Clear? यस सर. तो अब सिंपली 3 केसेस इस रिएक्शन का भी. एसिटिलीन होगा तो चाहे आप ACH करो या HBO करो, the product is always going to be symmetrical है ना भाई. प्रोडक्ट हमेशा क्या आएगा? एसिटाइल एसिटाल्डिहाइड. टर्मिनल वाला ACH करोगे तो मिथाइल कीटोन देगा, HBO करोगे तो अल्डिहाइड देगा. नॉन टर्मिनल दोनों केस में कीटोन देगा, बट कार्बोनाइल कौन से ग्रुप के साथ है वो डिफर करेगा, इसलिए उसकी पोजीशन भी डिफर करेगी. दैट्स व्हाट यू कैन सी इन 3-on एंड 2-on. समझा? यस सर. Yes, sir. नाउ कमिंग टू द न्यू रिएक्शन. पहले 4 प्रिपरेशन मेथड्स अगर आपने देखे हैं तो वो सब के सब हम कर चुके हैं. ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल, जेमिनल डायलाइड्स, अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस, ओजोनोलिसिस ऑफ अल्कीन, हाइड्रेशन ऑफ अल्काइन. करेक्ट. अब ये पांचवा और नया प्रिपरेशन, इट्स बाय डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ कैल्शियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड्स. फैटी एसिड्स आर नथिंग बट कार्बोक्सिलिक एसिड्स ओनली. अब इसका कैल्शियम सॉल्ट का फॉर्मूला क्या होगा? RCO minus twice C. It will be RCOO minus with a calcium plus 2. Now there is a mismatch in the valency, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आपको फॉर्मूला मिल जाएगा RCOO twice Ca, जिसको हम रिएक्शन में समझने के लिए लिखेंगे RCOO and shared by calcium. This is how we are going to represent. Up, how are the calcium salt named? सोडियम सॉल्ट को कैसे नेम करते थे? हेलो, सोडियम हाइड्रोक्साइड. सोडियम क्या बोला जाए? अल्कोक्साइड. नहीं बाबा, अरे सोडियम अल्कोक्साइड रोना अल्केनोएट. होता है, रोना रोना. जय यार, इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए. रोना एंड सोडियम सॉल्ट ऑफ द एसिड आर डिफरेंट, दे आर नॉट सेम. अग्री? सोडियम अल्केनोएट. सोडियम अल्केनोएट यानी प्रीफिक्स प्लस 8 वाला नेम करना है, प्रीफिक्स प्लस 8 वाला नेम. यानी अगर कॉमन नेम की बात करूं तो जब RH होगा तो इट विल बी कॉल्ड कैल्शियम फॉर्मेट. जब मिथाइल होगा तो हाँ, मुझे IUPAC नहीं चाहिए, मुझे कॉमन नेम में ज्यादा इंटरेस्ट है. Acetate. एसिटेट. इथाइल ग्रुप होगा तो प्रोपियोनेट, फिनाइल ग्रुप होगा तो बेंजोएट एंड सो ऑन. हो गया नेम. अब डीकार्बोक्सिलेशन में क्या होता है? Loss of CO2. लॉस ऑफ CO2. नाउ या तो CO2 लॉस होता है या तो सॉल्ट लॉस होता है. जैसे डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ सोडियम सॉल्ट में Na2CO3 सोडियम का कार्बोनेट निकला था, वैसे अब कैल्शियम का सॉल्ट है तो देयर विल बी लॉस ऑफ सोडियम सॉल्ट में सोडियम कार्बोनेट. तो गैस करो कैल्शियम सॉल्ट में कैल्शियम. कैल्शियम कार्बोनेट लाइमस्टोन निकलेगा. ठीक है. अब यहाँ पर भी मैं केसेस बाय केसेस बात करूंगा. तो केस नंबर 1, I have the calcium salt of formic acid which is called calcium formate. Calcium formate. अब कैल्शियम फॉर्मेट के लिए R की जगह क्या लिखोगे? H. H.
तो स्ट्रक्चर में आएगा HCOO, HCOO एंड शेयर्ड बाय कैल्शियम। अब इसको हम हीट करते हैं। ऑन हीटिंग इट एलिमिनेट्स द कैल्शियम as calcium carbonate, CaCOOO, 3 ऑक्सीजन निकाला। अब with the decarboxylation as calcium carbonate, what is the final product? Can you identify the final product? Formaldehyde. So can you frame a statement for this reaction? बनाओ। बनाओ। Calcium formate on heating is formaldehyde. On heating undergoes what? ये भी तो बोलो। Decarboxylation. तो कैल्शियम फॉर्मेट ऑन डीकार्बोक्सिलेशन गिव्स फॉर्मल्डिहाइड। ये हो गया आपका फर्स्ट केस और एक स्टेटमेंट। अब डीकार्बोक्सिलेशन के अलावा नॉर्मली ऑन द एरो वी राइट ड्राई डिस्टिलेशन, ड्राई डिस्टिलेशन। नाउ ये क्यों लिखते हैं, इसका एक इंपॉर्टेंट फंडा है। अगर इस रिएक्शन में अल्डिहाइड मिलता है तो वी नो दैट अल्डिहाइड आर इजीली ऑक्सीडाइजेबल, and if it oxidizes it will be changed into Said. कार्बोक्सिलिक एसिड। तो अगर अल्डिहाइड इस रिएक्शन में जैसे ही बना, if you don't distill it out, there is a possibility that the formaldehyde undergoes oxidation and can get converted into क्या बनेगा, फॉर्मिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। अब वो तो हमें करने नहीं देना है ना, क्योंकि फॉर्मल्डिहाइड इज द अल्डिहाइड which we are supposed to prepare। ठीक है। अब डीकार्बोक्सिलेशन के अलावा वी ऑल्सो कॉल दिस रिएक्शन एज पाइरोलिसिस। आई एम श्योर यू नो पाइरोलिसिस क्या होता है। क्या बोलोगे? पाइरोलाइसिस, break down by heat. ब्रोकन डाउन बाय हीट। वही तो कर रहे हैं ना, हीट सप्लाई कर रहे हैं, इस कंपाउंड को तोड़ रहे हैं, कैल्शियम कार्बोनेट निकाल रहे हैं, खत्म। So in the question you can either get decarboxylation, dry distillation or pyrolysis. It's one and the same। समझा? बोलो। yes or no? Yes, sir. Yes, sir. अब फॉर्मल्डिहाइड के अलावा if I want to prepare other aldehydes, when I say other मतलब फॉर्मल्डिहाइड छोड़ के, ठीक है, तो I will require a mixture of calcium salt and a calcium salt of formic acid, यानी calcium formate। Now when I say only calcium salt, matlab I'm just talking about the general calcium salt, which is represented as RCOO twice shared with calcium। और जब मैं जनरल बोलता हूं मतलब ये R H के बराबर नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर R H के बराबर है मतलब we are actually looking at फॉर्मेट ओनली। अब हमें फॉर्मेट के अलावा कोई और कैल्शियम सॉल्ट लेकर अल्डिहाइड्स को बनाना है। तो एक सॉल्ट मैंने कैल्शियम सॉल्ट लिया जनरल वाला, और दूसरा मैं लेता हूं कैल्शियम का फॉर्मेट। अब वापस हीट करेंगे ड्राई डिस्टिलेशन से, प्रोडक्ट को इजीली सेपरेट ऑफ कर देंगे। अब डीकार्बोक्सिलेशन में देयर इज अ लॉस ऑफ, क्या हो रहा है, कैल्शियम, कार्बन एंड 3 ऑक्सीजन यहां से निकाल दो। सेम वे में कैल्शियम, कार्बन एंड 3 ऑक्सीजन ऐसे निकाल दो, ऐसे निकाल दो। अब व्हाट इज द थिंग यू ऑब्जर्व इन द फर्स्ट केस, फर्स्ट कंपाउंड, क्या दिख रहा है? Simple ketone. सिंपल कीटोन, वेरी गुड। और दूसरे में Formal. फॉर्मल्डिहाइड।
लेकिन यहाँ पर ये जो प्रोडक्ट्स अभी आपने बताए दे आर द माइनर प्रोडक्ट्स। मेजर प्रोडक्ट्स में क्रॉस कपलिंग होता है, मतलब the RCO part of the first compound, RCO, combines with the H of the second. अब क्या मिला? aldehyde. Aldehyde। और ये वाला R भी CHO ग्रुप को लगेगा, तो again it is going to give you an, Aldehyde. मतलब can I say there will be 2 moles of aldehyde and 2 moles of calcium carbonate? समझा? Yes, sir. बाई प्रोडक्ट्स एसिड, सॉरी सिंपल कीटोन और फॉर्मल्डिहाइड होंगे, which I am not writing because they are the minor products of the reaction. अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो भी कैल्शियम सॉल्ट का R है, the aldehyde which is obtained is with the same R, मतलब करना क्या है, कॉपी पेस्ट। तो अब आपको मैं एक स्टेटमेंट देता हूं, आप मुझे उससे डायरेक्ट प्रोडक्ट बताओ। द स्टेटमेंट इज कैल्शियम एसिटेट on dry distillation with calcium formate gives, कैल्शियम का एसिटेट on dry distillation with calcium का फॉर्मेट, ये डायरेक्ट एमसीक्यू ऐसे आया हुआ है। gives मेजर प्रोडक्ट क्या होगा? Propanol. नहीं, Acetaldehyde. Aldehyde. एसिटल्डिहाइड। अब सुनो शॉर्टकट कैसे यूज करना है। जब मैं कैल्शियम एसिटेट बोलता हूं तो आपके दिमाग में R इक्वल टू क्या आना चाहिए? Yes. बस, प्रोडक्ट आपके सामने है। वापस, when I say calcium acetate, your mind should think of CH3. Copy that from your mind, paste it over here. What is the product you get? एसिडल्डिहाइड मिला ना? आ रहा है समझ में? और रिवर्स एनालिसिस भी करो, मतलब अगर मुझे बेंजल्डिहाइड प्रिपेयर करना है, बेंजल्डिहाइड, फ्रॉम व्हाट कॉम्बिनेशन आई विल गेट दैट? बेंजल्डिहाइड प्रिपेयर करना है, क्या कॉम्बिनेशन से मिलेगा? Calcium. कैल्शियम Benzoate. बेंजेनोएट। बेंजीनोएट नहीं होता, बेंजोएट। एंड Calcium formate. वो तो फिक्स ही है ना। तो अब शॉर्टकट ट्रिक देखो, द मोमेंट आई से कैल्शियम एसिटेट एंड कैल्शियम फॉर्मेट, द आंसर इज एसिटल्डिहाइड, क्योंकि एसिटेट वाला सॉल्ट एसिटल्डिहाइड देगा। तो बेंजोएट प्लस फॉर्मेट गिव्स Benzaldehyde. बेंजल्डिहाइड। प्रोपियोनेट प्लस फॉर्मेट गिव्स, Propion हो गया. बस ये पेन उठाने की भी जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। द स्टेटमेंट should be directly analyzed to get the product. This will save lot of time in analyzing this type of questions. मैकेनिज्म रिलेटेड है, वहां तो मैकेनिज्म करना ही पड़ेगा, वो अनअवॉइडेबल है। पर जहां पर डायरेक्ट कन्वर्जन्स की बात होती है, दिस विल हेल्प यू अ लॉट। तो अब कैन यू जस्ट अप्लाई योर ब्रेन एंड टेल मी, टू प्रिपेयर अ कीटोन, टू प्रिपेयर अ कीटोन, what should be taken as the reactant? Both should be calcium salts. Both should be calcium salts. अब उसमें दो केसेस आएंगे। अगर मुझे सिंपल कीटोन बनाना है, सिंपल कीटोन, should I take 1 calcium salt or 2 calcium salt? 1. 1। ये देखो रिएक्शन सामने है, ये रहा, खाली इसको हीट करो, आपको मिल जाएगा सिंपल कीटोन। और मिक्स्ड बनाने के लिए I should Different. take a mixture of calcium salt, one with R and other with R dash, right? कंडेंस फॉर्म में अगर लिखूं तो RCOO twice Ca, खाली एक कैल्शियम सॉल्ट को हीट किया तो R को कॉपी करके आप सिंपल कीटोन बना दो विथ कैल्शियम कार्बोनेट। एंड केस 4,
अगर आपको मिक्स्ड कीटोन बनाना है तो यू टेक अ मिक्सचर ऑफ द कैल्शियम सॉल्ट, one with R, other with R dash, and on heating you will get 2 moles of a mixed ketone major and 2 moles of CaCO3. ठीक है, तो अगर स्टेटमेंट ऐसा आता है कि कैल्शियम एसिटेट ऑन ड्राई डिस्टिलेशन गिव्स, which case you are going to think? Acid. एसीटोन। केस 3 हो गया ना, सिंगल कैल्शियम सॉल्ट तो सिंपल कीटोन, यानी CH3 को दोनों बार रिपीट करो आपको मिल जाएगा एसीटोन। सिमिलरली कैल्शियम बेंजोएट का ड्राई डिस्टिलेशन या पाइरोलिसिस गिव्स बेंजोएट, दिमाग में क्या आया? Benzaldehyde. नहीं 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 भाई मेरे, आई एम टॉकिंग अबाउट द केस 3 ना। इफ आई से कैल्शियम बेंजोएट, दिमाग में क्या आया पहले तो वो बोलो। RSPH. आर इज पीएच, फिनाइल है। अब उससे सिंपल कीटोन मिल रहा है, मतलब दोनों तरफ पीएच लगाओ। व्हाट इज द नेम ऑफ द कीटोन? Arsenal. डाइफिनाइल कीटोन इज ओके। और नाम? 1,1 diphenyl. हाँ हाँ, अरे अनम्यूट करके बोलो बराबर। फिनाइल, सी डबल बॉन्ड ऑफ फिनाइल इज कॉल्ड बेंजोफिनोन ना, बेंजोफिनोन। अरे भाई मैं डायरेक्ट स्टेटमेंट फॉर्म में बता रहा हूँ, आपको गधा मजूरी करना है तो लिख लिख के यू कैन just identify the correct product, that will also give you the correct answer. The difference is in the time taken for analyzing the answer. अब बेंजल्डिहाइड बनाने के लिए आपने ऑब्जर्व किया होगा एक सॉल्ट एटलीस्ट कैल्शियम फॉर्मेट होना चाहिए, कि नहीं? Acid. समीर, तो Yes, sir. अल्डिहाइड बनने के लिए कैल्शियम का फॉर्मेट होना जरूरी है, चाहे वो फॉर्मल्डिहाइड हो या कोई भी अल्डिहाइड हो। मतलब अगर स्टेटमेंट में कैल्शियम फॉर्मेट ना हो तो थिंक ऑफ Simple ketone. कीटोन। उसमें भी एक ही कैल्शियम सॉल्ट है तो सिंपल कीटोन, दो कैल्शियम सॉल्ट है तो Mixed. मिक्स कीटोन। अब अगर स्टेटमेंट आता है कैल्शियम एसिटेट, दिमाग में क्या आया, क्या निकाला? CH3. CH3 एंड कैल्शियम प्रोपियोनेट, C2H5. बोलो आंसर। ऑन ड्राई डिस्टिलेशन गिव्स Butane 2O. इथाइल मिथाइल कीटोन और ब्यूटेन 2-on। दिस इज हाउ यू पिकअप, नाम से पिकअप करना है। कैल्शियम एसिटेट रीड किया, आपका दिमाग में प्रोसेसिंग आया मिथाइल। कैल्शियम प्रोपियोनेट रीड किया, दिमाग में प्रोसेसिंग इथाइल, और उससे ड्राई डिस्टिलेशन करोगे तो यूल गेट अ मिक्स्ड कीटोन ऑफ इथाइल एंड मिथाइल, दैट इज ब्यूटेन 2-on। समझा? Acid. तो अगेन बोल रहा हूं, जितने भी रिएक्शंस मैं करवा रहा हूं, आई एम डिवाइडिंग दैट इन केसेस। यहाँ पे 4 केसेस है, केस 1 फॉर्मल्डिहाइड, केस 2 जनरल अल्डिहाइड, केस 3 सिंपल कीटोन, केस 4 मिक्स्ड कीटोन। So I have a doubt. दैट सिंपल। हाँ बोलो। So in one salt only can both the alkyl groups be different? It can be, but those type of calcium salts are very rare. आप बोल रहे हो CH3COO और C2H5COO and shared with calcium, करेक्ट? Yes, sir. ऐसे टाइप के कैल्शियम सॉल्ट्स ना बहुत रेयर हैं, ठीक है? तो द एग्जिस्टेंस ऑफ सच सॉल्ट्स इज नॉट प्रैक्टिकली ऑब्जर्व्ड। थियोरेटिकली अगर मैं इसको रिएक्शन के थ्रू बताऊं तो डेफिनेटली इट इज गोइंग टू गिव यू अ मिक्स्ड कीटोन ऑफ ब्यूटेन 2-on, नो डाउट अबाउट इट। ठीक है, मान लो ये प्रैक्टिकल थियोरेटिकल लेवल पे क्वेश्चन आ भी जाता है ना, तो आप इसमें मिक्स कीटोन बना सकते हो, कोई इश्यू नहीं। ठीक है, Yes, sir. अब नेक्स्ट प्रिपरेशन इज फ्रॉम अल्काइल साइनाइड।
Now the moment you think about cyanide, इसके दो रिएक्शन तो आप हमेशा याद रखना है. What were they? HR. HR, where the statements were cyanide on hydrolysis gave Acid. acid, Acid. and cyanide on reduction gives primary amine. primary amine. I hope everyone knows this by heart. अब cyanide के और दो रिएक्शन आपके सामने. Again, case 1 is the preparation of aldehyde from the cyanide. और केस 2 है कीटोन का. ठीक है, तो हर एक प्रिपरेशन मेथड में आप केसेस देख रहे हो, अल्डिहाइड का और कीटोन का. वैसे ही आपको केस बाय केस इसको स्टडी करना है. तो साइनाइड्स आर रिप्रेजेंटेड एज RC ट्रिपल बॉन्ड N, and here to convert to aldehyde it is reduced with two nascent hydrogen prepared in C2 via SnCl to dilute HCl, जो कि इसका reducing agent बन जाएगा. SnCl to dilute HCl. Up the two hydrogen adds across the triple bond and it gives RCH double bond NH. Can you identify C double bond N functional group? हमने पढ़ा है कहीं पे. Mine. Imine. Can you recollect where we have studied this? Atomerism. GI. Very good. और इसमें कौन से टाइप का नॉमेनक्लेचर यूज किया था हमने? EZ. नहीं. Sin and D. Sin and T. EZ कब यूज करेंगे? जब चारों सब्स्टिट्यूएंट्स अलग हो तो. लोन पेयर के केस में सिन और एंटी को यूज करते हैं. ठीक है, तो इमाइंस आर C डबल बॉन्ड N. तो इसमें भी ये जो बन रहा है ना, दिस इज एन इमाइन कंपाउंड, बट दिस इमाइन कंपाउंड इज नॉट दैट स्टेबल. C डबल बॉन्ड N वाला कंपाउंड इतना स्टेबल नहीं होता है. ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं इमाइन कॉम्प्लेक्स. कॉम्प्लेक्स इसलिए बोलते हैं बिकॉज दिस रिएक्शन टेक्स द एसिड इन एक्सेस and the imine clubs with the HCl and forms this intermediate RCH double bond NH HCl. अब ये कॉम्प्लेक्स जो है उसको हम हाइड्रोलाइज करेंगे. So hydrolysis is done by adding water. तो जैसे Mg कॉम्प्लेक्स बनता था ग्रिग्नार्ड में, उसको भी हम आगे हाइड्रोलाइज करते थे. LiLH4 में हाइड्राइड कॉम्प्लेक्स बनता है, उसको भी हम हाइड्रोलाइज करते हैं. H3O+ लिखते हैं ना, मतलब क्या? पानी और एसिड. चाहे H3O+ लिखो या HOH डाइल्यूट HCl लिखो, इट्स वन एंड द सेम. अब यहाँ पर नाइट्रोजनस कंपाउंड या नाइट्रोजनस पार्ट जो है, दैट एलिमिनेट्स विथ 3 हाइड्रोजन टू फॉर्म Ammonia. ammonia, and that clubs with HCl. Ammonia and HCl are very reactive to give Ammonium chloride. अमोनियम क्लोराइड. ये बन गया बाई प्रोडक्ट. और अब ये ऑक्सीजन CH डबल बॉन्ड के साथ जुड़ जाएगा एंड वी गेट द एक्सपेक्टेड अल्डिहाइड. तो आप स्टेटमेंट बनाओ, साइनाइड ऑन Reduction. with SnCl to dilute HCl. followed by hydrolysis gives an aldehyde. Gives an aldehyde. और aldehyde कौन सा मिल रहा है उसके लिए तो सिंपल है, वॉट एवर इज अ साइनाइड का R कॉपी एंड पेस्ट. ठीक है, तो साइनो की जगह CHO मिल रहा है. अब जो HR वाले रिएक्शन में रिडक्शन बताया था ना, उस केस में तो साइनाइड वाज कन्वर्टेड टू व्हाट? CH2. Primary amine. Now what was the reagent over here? 4 nascent hydrogen. 4 nascent hydrogen. And what was the reducing agent? We had used a very strong reducing agent over here. LiLH. LiLH4. LiALH.
LiAlH4 in trither followed by hydrolysis, ऐसे ही लिखते हैं ना। अच्छा, तो इन दोनों रिएक्शंस में डिफरेंस क्या है? ये जो रिडक्शन हो रहा है ना, इट्स अ पार्शियल रिडक्शन बिकॉज द ट्रिपल बॉन्ड इज कन्वर्टेड इनटू डबल बॉन्ड। अनसेचुरेशन अभी भी है, बट जैसे ही साइनाइड अमाइन में कन्वर्ट हो रहा है, अनसेचुरेशन इज गॉन। डू यू अग्री? Yes, sir. मतलब साइनाइड जो अमाइन में कन्वर्ट हो रहा है, वो रिडक्शन कौन सा है? इट विल बी कॉल्ड कंप्लीट रिडक्शन, हाँ कि नहीं? Yes, sir. और साइनाइड जो अल्डिहाइड में कन्वर्ट हो रहा है, दैट वुड बी कॉल्ड पार्शियल रिडक्शन। और ये पार्शियल रिडक्शन करने वाला महान व्यक्ति था स्टीफन, इसीलिए दिस इज कॉल्ड स्टीफन्स रिडक्शन। तो अब आप सिंपल लैंग्वेज में स्टेटमेंट ये बोल सकते हो कि साइनाइड ऑन स्टीफन्स रिडक्शन फॉर्म्स एन अल्डिहाइड। करेक्ट। Yes, sir. अच्छा, साइनाइड्स इन IUPAC आर कॉल्ड Nitrile. नाइट्राइल। तो अगर मेरे पास R मिथाइल है, तो व्हाट इज द कॉमन नेम? Methyl cyanide or मिथाइल ethane साइनाइड, IUPAC ethane nitride. ethane nitride. Now look at the nomenclature. When you write alkyl cyanide, we are considering the carbon in the word cyanide, इसलिए methyl cyanide. But IUPAC में when you say nitrile, we don't consider the carbon. So that is the reason the carbon here is considered in the parent chain. इसीलिए जो मिथाइल साइनाइड है उसका IUPAC मीथेन नाइट्राइल नहीं होता है। ये बहुत बड़ा मिस्टेक है। हाँ, methyl cyanide is not methane nitrile, it is ethane nitride. एंड इसमें एक और नाम दिया था मैंने, प्रीफिक्स वाला नाम। तो मिथाइल मतलब आपके दिमाग में घंटी बजनी चाहिए एसिड, तो यहाँ पर एक और नाम है एसेटोनाइट्राइल। और सामने आपका जो प्रोडक्ट है, कैन यू टेल मी डायरेक्टली, बिना ये सब किए? देखो, नाम acetaldehyde. का एडवांटेज, एसेटोनाइट्राइल गिव्स यू एसेटल्डिहाइड। बहुत सारे प्रोडक्ट्स आप सिर्फ नाम के थ्रू आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब इसका सेकेंड केस कीटोन बनाने का, जो कि बहुत सिंपल रिएक्शन है, because it is a well-known reaction of Grignard mechanism, wherein the cyanide to prepare a ketone is added with Grignard. अब हमने कार्बोनाइल और ग्रिग्नार्ड का एडिशन किया था अल्कोहल में, कितने केसेस थे वहां पर? हाउ मेनी केसेस वी हैड स्टडीड? Four. नहीं, कार्बोनाइल मतलब फॉर्मल्डिहाइड, अल्डिहाइड और कीटोन वाला केस था, राइट? तीन ही केस थे। The acid. एसिड का ग्रिग्नार्ड के साथ रिएक्शन अल्कोहल नहीं देता, हाँ वो मैंने अलग बताया था, उसमें मैंने फंडा बताया था अल्केन बनने का, राइट? Yes, sir. उसको वो केस में कंसिडर मत करो। तीन केसेस अपने क्या थे? टेल मी द स्टेटमेंट। Formaldehyde with Grignard forms 1-degree alcohol. परफेक्ट। Aldehyde with Grignard forms 2-degree. Ketone with Grignard forms 3. परफेक्ट। दिस इज हाउ यू आर सपोज टू रिमेंबर, दिस इज हाउ यू आर सपोज टू स्टडी ऑर्गेनिक। अगर ये तरीका अडॉप्ट नहीं करोगे तो चाहे रिएक्शन 10 बार लिखो, 20 बार लिखो, कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, स्टेटमेंट एनालिसिस बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट, दैट ओनली विल गिव यू अ क्लियर अंडरस्टैंडिंग। नाउ इसमें मैकेनिज्म की बात करते हैं। तो ग्रिग्नार्ड फर्स्ट ब्रेक्स डाउन इनटू R minus and GS plus. R minus MgX plus. Now with R minus, it is actually producing a carbon ion, which will act as a source of Nucleophile.
nucleophile, and that is why it will attack the electrophilic center, which is carbon. Along with that, there will be shifting of pi electron. Which effect can you observe over here? Electromagnetic. Electromagnetic effect. अब यहाँ पर after the addition, it will give RC, double bond N, C पे आ जाएगा R dash, N पे आ जाएगा MgX. ठीक है, और ग्रिग्नार्ड के हर रिएक्शन में जो बीच में बनता था ना, that was called MG. Mg कॉम्प्लेक्स. और कॉम्प्लेक्स जब भी इंटरमीडिएट में बनेगा, आगे का स्टेप Hydrolysis. हाइड्रोलिसिस. यहाँ पर 2 मोल्स ऑफ वाटर यूज होता है. वैसे भी हाइड्रोलिसिस मतलब वाटर इज टेकन इन एक्सेस. होता क्या है, NHHH एलिमिनेट्स एज नाइट्रोजनस एलिमेंट होगा ना, तो हमेशा एक बाई प्रोडक्ट कॉमन हो गया. क्या निकलेगा? अमोनिया, जो HCl के साथ कंबाइन होकर NH4Cl बना देगा. फिर MgX will take away the OH. MgX will take away the OH. अब क्या बचा? Oxygen. Oxygen. And that will combine with the carbon to form a ketone. ठीक है, अब ये तो मैंने पूरा मैकेनिज्म बताया, लेकिन एंट्रेंस के लिए now you just convert this into a statement. The statement will be cyanide on cyanide Reaction on. with Grignard. कौन से टाइप का रिएक्शन है ये? एडिशन है ना, with the nucleophile as the attacking species. So we know that it follows the NAR mechanism. नया नहीं है, कार्बोनाइल में भी ये हो रहा था, साइनाइड में भी ये हो रहा है. करेक्ट? Yes, sir. So the statement will be cyanide on addition with Grignard gives a Ketone. ketone. So now I speak a statement, you tell me the name of the product. प्रोपियोनाइट्राइल. Now जैसे मैंने प्रोपियोनाइट्राइल बोला, क्या प्रोसेसिंग हुआ दिमाग में? C2H5. C2H5. R is C2H5. Superb. Reacts with phenyl magnesium iodide. Gives Propionophenol. प्रोपियोनोफिनोन. समझ में आ रहा है क्या? प्रोपियोनाइट्राइल मतलब द साइनाइड इज विद R इक्वल टू इथाइल. खाली R डैश में खेलना है. इट्स जस्ट अ गेम. प्रोपियोनाइट्राइल पिकअप इथाइल, फिनाइल मैग्नीशियम आयोडाइड पिकअप फिनाइल. अब जैसे आपने पिकअप कर दिया R और R डैश, कीटोन समझ में आ जाएगा. इट्स प्रोपियोनोफिनोन या इथाइल फिनाइल कीटोन. ठीक है, रिवर्स वे में अगर मुझे यहाँ पर आइसोप्रोपाइल एंड इथाइल कीटोन बनाना है, तो व्हाट वुड बी द कॉम्बिनेशन ऑफ रिएक्टेंट्स? आई रिपीट, आइसोप्रोपाइल मिथाइल कीटोन बनाना है, क्या कॉम्बिनेशन होगा? भाई R डैश को कॉपी पेस्ट. 2-methyl propene 1-nitrile. 2-methyl propane 1-nitrile. Correct, that would be the IUPAC of the nitrile. And C2H5. Grignard will be with the other. Can I reverse? हाँ ना, जब मिक्स कीटोन बनना है तो R और R डैश कोई भी हो सकता है. मतलब जब मैंने बोला आइसोप्रोपाइल मिथाइल कीटोन, आई कैन टेक आइसोप्रोपाइल साइनाइड एंड मिथाइल का ग्रिग्नार्ड, और वाइस वर्सा आई कैन टेक मिथाइल का साइनाइड एंड आइसोप्रोपाइल का ग्रिग्नार्ड. दोनों केस में कीटोन तो सेम ही मिलेगा ना. Yes, sir. क्लियर? ठीक है,
तो ये टाइप का एनालिसिस इंपॉर्टेंट है. तो आप देखोगे तो नोट्स में आई हैव गिवन ओनली द जनरल रिएक्शन, बिकॉज वंस यू रिमेंबर द जनरल रिएक्शन, then just by a correct analysis you can get to the direct product. Okay, so we have completed 6 preparation methods. In conclusion, actually 2 ही preparation हमने आज discuss की है. Session शायद आपको लंबा लगा रहा होगा, लेकिन we have just analyzed or completed 2 unique preparations or new preparation. पहले 4 प्रिपरेशन ऑलरेडी हम कर चुके थे, उसके पहले का नॉमेनक्लेचर भी हमने डिटेल में किया हुआ है, फिर भी आई जस्ट रिवाइज द होल थिंग अगेन. So if I'm taking efforts from my side, I think you should also take efforts from your side to revise the reactions properly. अब कैसे करोगे? I will upload the assignment. You are supposed to write the general reaction for all the preparation. General reaction यानी R dash के फॉर्म में. और हर जनरल रिएक्शन के साथ you will write one example with R equal to methyl and जहाँ R dash है वहाँ ethyl ले लो. R equal to methyl and R dash equal to ethyl. मतलब इस रिएक्शन में एग्जाम्पल क्या होगा? मिथाइल साइनाइड और इथाइल का ग्रिग्नार्ड. अब वो रिएक्शन जब आप लिखोगे इन द फॉर्म ऑफ एग्जाम्पल, द नॉमेनक्लेचर शुड बी टेकन केयर ऑफ. क्योंकि आप एनालिसिस स्ट्रक्चरल वे में करोगे लेकिन नेमिंग वे में नहीं करोगे तो वापस प्रॉब्लम है. बिकॉज इफ द क्वेश्चन इज आस्क्ड इन द फॉर्म ऑफ नेम्स, देन यू शुड नॉट बी स्टक. जैसे यहाँ पर मिथाइल का साइनाइड इज इटसेल्फ इथेन नाइट्राइल और एसेटोनाइट्राइल, तो आपको क्वेश्चन जब ऐसे आएगा तो समझ में तो आना चाहिए ना कि इथेन नाइट्राइल मतलब मिथाइल साइनाइड की बात हो रही है. समझा? तो एवरी रिएक्शन के नीचे एक एग्जाम्पल रहेगा, ठीक है, और उस एग्जाम्पल में नॉमेनक्लेचर पे फोकस करना जरूरी है. So that much work you have to do before Saturday, irrespective of whatever test is scheduled, whatever preparation your like whatever preparation is going on. ये सिर्फ आपका half an hour to 45 minutes लेगा, लेकिन that will definitely give you an edge to remember the reactions. आज भी most of you don't remember the previous reactions. अल्कीन का रिपीट हुआ, अल्काइन का रिपीट हुआ, barring 2-3 students, no one is answering. So that gives a clear idea that definitely they don't remember the reactions. Otherwise, the response has to be there from all of you. ठीक है, तो अपने भले के लिए अगर अब ऑर्गेनिक अभी भी संभालना है तो दिस इज द लास्ट टाइम. ये चैप्टर गया मतलब ऑर्गेनिक खत्म. फिर आप सोचोगे मैं एक साथ बैठ के पढ़ लूंगा, आई विल बी एबल टू रिकलेक्ट रिमेंबर द रिएक्शन. इट्स नॉट गोइंग टू हैपन. एक्सेप्ट द फैक्ट. So please start your hard work from this chapter if you are still feeling organic a problem. प्रॉब्लम मतलब याद नहीं रहता, बस वही एक प्रॉब्लम है जो मैंने जनरली एज अ फीडबैक देखा है. ठीक है, तो उसको सॉल्व करने के लिए द ओनली थिंग इज द वे आई एम डिस्कसिंग द रिएक्शन, द एनालिसिस, द स्ट्रक्चरल वे, द नेमिंग वे, दैट इज टू बी डन. ओके. Yes, sir. So I'm sending a Google form which includes phenols and ether for just 20 questions. Quickly finish it off and submit it. So can you keep it open till tomorrow morning? नहीं The बाबा, क्यों? Google form. अरे 20 क्वेश्चन है. So I just want to revise once I've not done it properly. I will keep it open till 7:30 for you. आधा घंटा रिवाइज करो और फिर So दे दो. tomorrow morning वैसे भी 7:30. नहीं, टुमारो मॉर्निंग नहीं, 7:30 PM टुडे. Okay. ज्यादा एडवांटेज नहीं लेने का. और ये रखा क्यों है? सो दैट यू रिवाइज द स्टफ रेगुलरली. जब गूगल फॉर्म होता है तब रिवाइज करते हो, मतलब क्या उसके पहले रिवाइज करना चाहिए. ठीक है, 7:30.